Hanji, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we will learn about an important essay by Judith Butler, that is Performative Acts and Gender Constitution. First, we will learn a little about Judith Butler, that who he was and why he is important. So Judith Butler is famous American philosopher and gender theorist. She is best known for her work in feminism, queer theory, political theory, and literary criticism. She has changed the way people understand gender and identity. Her work supports women's rights and LGBTQ plus community. She says everyone should have freedom to express their gender in their own way. Butler's ideas are used in many academic fields like gender studies, literature, sociology, and philosophy. And some of the important works of Judith Butler includes Gender Trouble, Bodies That Matter, Undoing Gender, Excitable Speech, The Psychic Life of Power, and Precarious Life. And in her famous essay Performative Acts and Gender Constitution, वो कहती है कि लड़का या लड़की होना हमारे जन्म से तय नहीं होता, हम अपने कामों और बात करने के तरीके से इसे बनाते हैं. Okay, she challenges the traditional idea of gender. She says that gender is not something we are born with, but something we perform through our action and speech. Okay. हाँ जी, सो नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेटिविटी. सो इस ऐसे में सबसे ज़रूरी बात है परफॉर्मेटिविटी. ओके, एंड बटलर एक्सप्लेन दैट जेंडर इज़ परफॉर्मेटिव, मीनिंग इट इज़ नॉट समथिंग वी हैव फ्रॉम बर्थ बट समथिंग दैट बिकम्स रियल थ्रू रिपीटेड एक्शंस. सो बटलर कहती है कि लड़का या लड़की होना हमारे जन्म से नहीं आता, ये हमारी रोज़ रोज़ की हरकतों और आदतों से बनता है. ओके, एंड शी राइट्स, gender is the repeated stylization of body, a set of repeated acts within a highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the appearance of substance. ओके, सो जेंडर हमारी बॉडी का बार बार किए जाने वाला एक ढंग है, कुछ ऐसे काम जो हम बार बार करते हैं और धीरे धीरे ये असली पहचान जैसे लगने लगता है. ओके, दिस मीन्स दैट वी कीप डूइंग द सेम एक्शंस अगेन एंड पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट इट इज़ अ नेचुरल आइडेंटिटी. Examples of performativity. She compares performativity to saying, I promise. When we say these words, we are not just speaking but doing something, making a promise. In the same way, when we behave like a man or a woman, we are not showing our natural identity, we are creating it through our actions. सो बटलर कहती है कि जैसे हम जब कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो हम सिर्फ बोल नहीं रहे होते बल्कि सच में हम प्रॉमिस कर रहे होते हैं. वैसे ही जब हम लड़की या लड़के जैसे बिहेवियर करते हैं, बिहेव करते हैं, तो हम अपनी पहचान बना रहे होते हैं, ना कि बस दिखा रहे होते हैं. आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू. Gender is a social construction, not natural. Butler says sex is biological, but gender is social and cultural. It is not something natural or God given, but a meaning given to our bodies by society. सो बटलर कहती है कि सेक्स मतलब लड़का या लड़की का शरीर तो हमें जन्म से मिलता है, लेकिन जेंडर यानी लड़का या लड़की जैसे बनना ये हमें समाज सिखाता है, सोसाइटी टीच करती है. ओके, ये कोई भगवान की दी हुई चीज़ नहीं है. समाज हमारे शरीर को मतलब देता है, जैसे कौन से काम लड़कों के हैं एंड कौन से लड़कियों के. ओके, एंड ही यूज सिमोन द ब्यूवॉयर्स फेमस लाइन, one is not born but rather becomes a woman. ओके, मतलब औरत पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है. इसका मतलब है कि औरत या मर्द होना हमारे जन्म से तय नहीं होता, हम वैसे बन जाते हैं जैसे सोसाइटी हमें बनाती है और सिखाती है. ओके, Butler also says the body is a historical situation. This means our body gains meaning over time from social experiences and repeated acts. Okay. Next is about performance of gender in society. So gender is always performed in front of social audience.
ओके, सो हमेशा हम अपने जेंडर को समाज के सामने दिखाते हैं। लोग हमसे खास तरह का बिहेवियर करने की उम्मीद करते हैं। जैसे वुमेन से उम्मीद की जाती है कि वो सॉफ्ट एंड इमोशनल रहें, एंड मेन आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड असर्टिव। एंड अगर हम उनकी उम्मीदों के हिसाब से बिहेवियर नहीं करते तो लोग हमें गलत समझते हैं, हमें पनिशमेंट देते हैं, जैसे ताने मारना या हमें अलग मान लेना। एंड बटलर लिखती है, द परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर इज कंपेल्ड बाय सोशल सैंक्शन एंड टैबू। टैबू का मतलब होता है रोक टोक। ओके, सो हमें समाज के दबाव में आकर खास तरीके से लड़का या लड़की जैसा बिहेवियर करना पड़ता है। जेंडर इज़ नॉट जस्ट फ्री चॉइस और फोर्स्ड। बटलर कहती है कि जेंडर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बिल्कुल अपनी मर्जी से चुन लें, जैसे हम कपड़े चुनते हैं, और ये भी नहीं है कि ये हम पर पूरी तरह से थोप दी जाती है। असल में हम जेंडर परफॉर्मेंस समाज की लिमिट्स, जो सोसाइटी की लिमिट्स होती हैं, उनके अंदर ही करते हैं। हमारी ये काम धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाते हैं और हमें ये सब कुछ नेचुरल लगने लगता है। सो बटलर सेज जेंडर इज़ नॉट completely free choice like choosing clothes. It is also not fully forced. Instead, we perform gender within the limits of society. These actions become habits and start to feel natural. Gender is not a radical choice, but neither is it imposed or inscribed. It means that we are not totally free to choose our gender performance, but we are not completely trapped either. Society gives us a script and we keep following it without thinking. Butler critiques the binary gender system, male, female, masculine, feminine, that limits expression of identity and marginalizes those who transgress it. She writes, discrete genders are part of what humanizes individuals within contemporary culture. Indeed, those who fail to do their gender right are regularly punished. समाज में अगर हम लड़का या लड़की जैसी पहचान के हिसाब से ठीक से नहीं चलते तो लोग हमें गलत समझते हैं एंड हमें सजा देते हैं। ओके, possibility of subversion through repetition. Because gender is created through repetitions of acts, it can also be changed by repeating different kinds of acts. There is space to break the rules even if society doesn't encourage it. क्योंकि जेंडर बार बार किए गए कामों से बनता है, इसलिए इसे बदलना भी पॉसिबल है। अगर हम अलग तरह के काम रिपीट करें तो हम जेंडर के नियमों को तोड़ सकते हैं। चाहे समाज इसकी मदद ना करे, फिर भी नियम तोड़े जा सकते हैं। बटलर लिखती है, इन इट्स वेरी करेक्टर एज परफॉर्मेटिव रिसाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेस्टिंग इट्स राइफाइड स्टेटस। अगर हम एक तरह से जेंडर का प्रदर्शन कर सकते हैं तो हम उसे बदलकर नए तरीके से भी दिखा सकते हैं, हम नई पहचान बना सकते हैं। ओके, इट मीन्स इफ़ वी परफॉर्म जेंडर इन वन वे वी कैन आल्सो परफॉर्म इट डिफरेंटली टू क्रिएट न्यू आइडेंटिटीज़। Repetition creates gender, but variation in repetition opens a space for resistance and transformation. So you must include these lines in your exam answers to make the answer more effective and impactful. Okay. To clarify her concepts, Butler differentiates between theatrical acting and gender performativity. In theater, an actor knows they are playing a role, but in real life, people don't recognize their gendered behaviors as performances. This lack of awareness is what makes gender appear natural and stable. बटलर समझाने के लिए थिएटर एंड जेंडर परफॉर्मेंस में फ़र्क बताती है कि थिएटर में एक्टर जानता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन असली ज़िंदगी में लोग नहीं समझते कि वो भी जेंडर का रोल निभा रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जेंडर नेचुरल है और हमेशा से ऐसा ही है। ओके, एंड वो लिखती है, द एक्ट्स बाय विच जेंडर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बियर सिमिलरिटीज़ टू परफॉर्मेटिव एक्ट्स विद इन थिएट्रिकल context, though only under certain cultural conventions do acts become performative. थिएटर में हम जानते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, पर जेंडर के मामले में हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए जेंडर नेचुरल लगता है। ओके।
एंड नेक्स्ट वो लिखती है कि समय के साथ ये बार बार किए गए एक्ट्स, ये काम जम जाते हैं जैसे लेयर्स ऑफ सॉइल, एंड धीरे धीरे ये आदत, नियम एंड समाज की एक्सपेक्टेशन बन जाती है और हमें लगता है कि जेंडर नेचुरल है। ओके, बॉडीज बिकम जेंडर थ्रू अ लिगेसी ऑफ सेडिमेंटेड एक्ट्स। हम जेंडर वाला व्यवहार इतना बार करते हैं कि वो हमारी आदत बन जाता है और फिर हमें लगता है कि यही हमारा नेचुरल जेंडर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Butler criticized heterosexual bias, which links gender to reproduction and family roles. In theatre, a man can play a woman and it is accepted because it's just acting, but in real life, the same act is seen as a wrong and dangerous. सो बटलर हेट्रोसेक्सुअल सोच की आलोचना करती है जो जेंडर को केवल रिप्रोडक्शन एंड परिवार के रोल से जोड़ती है। थिएटर में अगर कोई मर्द औरत का रोल करे तो लोग मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन असली ज़िंदगी में अगर ऐसा हो तो लोग इसे गलत या खतरनाक मानते हैं। बटलर लिखती है, जेंडर इज़ परफॉर्म्ड एंड परफॉर्म्ड एज कॉन्टीन्यूस एक्ट। मतलब समाज हमसे हमेशा हमारे जेंडर के रोल निभाने की उम्मीद करता है और हमें इन नियमों को तोड़ने की इजाज़त नहीं देता। ओके, Butler ends the essay by warning feminists not to use woman as a fixed political identity. If we say women as one single category, we ignore the diversity of people's gender experiences. She calls for a critical genealogy of gender where we study how gender roles have developed over time. सो बटलर अपने ऐसे के लास्ट में फेमिनिस्ट को समझाती है कि औरत को एक ही तरह की पहचान, आइडेंटिटी मानना गलत है। अगर हम औरत को बस एक ही कैटेगरी मान लेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हर किसी का जेंडर का अनुभव अलग अलग होता है। बटलर कहती है कि हमें ये देखना चाहिए कि जेंडर के नियम समय के साथ कैसे बने हैं एंड कैसे इन्हें बदला जा सकता है। ओके, जेंडर इज नाइदर determined by nature nor fully scripted on the body by culture. Gender is something performed and performed as a continuous act. सो इन ईजी लैंग्वेज उनका मतलब है कि जेंडर ना तो जन्म से तय होता है, ना ही पूरा का पूरा समाज तय करता है। हम अपने कामों, अपने बिहेवियर से इसे बार बार करके बनाते हैं। ओके, in conclusion, Butler's performative acts and gender constitution reshapes our understanding of gender. It is not a stable identity, but an ongoing performance. This performance is shaped by social norms, but also has the potential to subvert them. Okay, सो बटलर का परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन हमें जेंडर को समझने का नया तरीका देता है कि जेंडर कोई पक्की या स्थायी पहचान नहीं है, बल्कि ये लगातार होती रहने वाली परफॉर्मेंस है। ये परफॉर्मेंस समाज के नियमों से बनती है, लेकिन इसमें इन नियमों को तोड़ने की ताकत भी होती है। ओके, बटलर offers a radical framework for understanding gender as both constructed and contested, both regulated and revolutionary. आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई होगी। जे मेरे कोल कोई गलती होगी होवे दैन प्लीज़ मैनू माफ़ करियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।